تجزیہ کار موجود ہیں جو بڑی باریکی سے دیکھ رہے ہیں کیا کچھ مختلف ہونے کو ہے، یہ سب کچھ ماضی والا ہی ہونے والا ہے۔ حسن نثار صاحب میں آپ کی جانب آؤں، اب یہاں پہ ٹرن آؤٹ کی بھی بات ہو رہی تھی، آپ نے پہلے ہائیبرڈ کی بات کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اس کے تو کوئی نتائج نہیں ہوتے ہیں، نہ اس سے کچھ نکلتا ہے۔ میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، جتنی گفتگو اب تک ہوئی پی ٹی آئی بنا سمبل کے الیکشن میں ہے، یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آپ سمجھتے ہیں وفاق میں اکٹھی ہوں گے یا پریفر کریں گے کہ انڈیپینڈنٹ ملا کے علیحدہ علیحدہ آگے بڑھا جائے، جس کے پاس بھی نمبر لیکن بات سنیں، میں سیدھی سی ایک بات کروں گا، ٹھگوں کے درمیان بھی حالات کے تحت ان کے گروپس جو ہیں، ایک گورے کی بڑی خوبصورت کتاب ہے اس کا امیر علی ٹھگ کے بارے میں، تو یہ میں ان کو دیکھیں بات سنیں، میں پاکستان کی سیاست کو کبھی سیاست نہیں سمجھا، نہ یہاں کے سیاستدان کو سیاستدان، نہ یہاں کی ڈیموکریسی کو میں نے کبھی ڈیموکریسی سمجھا ہے۔ دو تین چیزیں مجھے اور ایڈ کرنی ہیں بہت مختصر۔ ندیم صاحب نے، طلعت صاحب نے ایک بات کی، وہی تجربے دہرا رہے ہیں۔ بر صغیر کی تاریخ محمود غزنوی وغیرہ سے پہلے کی بھی اٹھا کے دیکھ لیں، اندازہ ہوگا آپ کو ہزاروں سال سے ان کا یہی حال ہے۔ پہلی بات یہ ڈی این اے کا رولا ہے۔ اچھا، ہمارے میرے لائل پوریہ نے جواب اگر اچھا ایڈ کر دیں آپ کر سکتے ہیں، کبھی نتیجہ مختلف بھی نکلا؟ میں اس کی طرف بھی آ جاؤں گا بعد میں اگر آپ اجازت دیں گے۔ ہمارے میرے لائل پوریہ نے کہا کہ صحافت سے عدلیہ تک اور انتظامیہ وغیرہ وغیرہ سارے بطور ہتھیار استعمال ہوتے ہیں، تو اگین اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو دا سیم تھنگ۔ اس کی وجہ ہے ہتھیار کیا چیز ہے، کہنا ویپن ریزسٹ، وہ ہائیڈروجن بام بھی ہو، آپ نے صرف ایک بٹن کو ہاتھ لگانا ہے وہ کہانی شروع کر دے۔ نہیں، کلاشنکوف ہے، میں آرمز رکھنے والا آدمی ہوں، مجھے پتا ہتھیار تو معصوم ہے۔ اچھا، ایک تو یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ جی صحافت بھی تو عدلیہ بھی، تو کیا عدلیہ کیا صحافت، اٹس دا سیم تھنگ۔ اچھا، اب ایک بات بڑی خوبصورت جس کا ایک زمانے میں بہت زیادہ اس پہ کڑتا تھا، جو افتخار صاحب کا جو بیسک مسئلہ ہے اور وہ ٹھیک مسئلہ ہے، وہ ہے مقامی حکومتیں۔ اگین اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو ڈی این اے۔ ہاؤ؟ عبداللہ وینس 2 دفعہ میرے بیٹوں کی طرح ہے، وہ ایم پی اے رہا ہے، اس کے جو والد تھے وہ ہمارے بہت میرے بڑے بھائیوں کی طرح تھے، تو ہم ان کو کہتے تھے پائیا وینس۔ یہ جب پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں یہ ہوا نا کہ یہ عورتیں وارتیں بھی آئیں، کو پتہ نہیں کدھر کیا ہے، یہ وہ سمجھ گیا نا، یہ بنیاد یہ کیا حکومتیں مقامی حکومتیں ٹائپ میں نا، تو پائیا آیا میرے ادھر نا بیلی پور فارم ہاؤس پہ، بیٹھے گپ شپ لگا رہے، تو میں نے کہا پائیا تو کم چنگا ہو گیا مقامی حکومتیں یہ وہ، تو مشرف صاحب نے ٹھیک کی تھا، کہہ مار کے بہت خوبصورت آدمی تھا، اس نے کہا بات سن یار، یہ چند ہفتے پہلے میں نے ان سب کو بلایا تو عورتیں اکٹھی ہو کے میرے پاس آ گئیں جو کوئی الیکٹ ہوئی تھی، مجھے وہ ٹیکنیکلی مجھے وہ تو کہتا مجھے آ کے کہتی ہیں کہ قادی حکومت تے قادے اسیم پتہ نہیں ممبر بنے، اج پہلی باری ایک بوتل ڈجی ہے، یہ بہاول نگر کی میں بات کر رہا ہوں، اج ایک بوتل ڈجی ہے۔ میں کہ بھائیا یہ کی مطلب، میں نے کہا اج پین ایک بوتل لبھی ہے، کیا لعنت ہے یہو جی حکومت ہے۔ سو دس از واٹ وی آر۔ ٹھیک ہے، اب سار صاحب کچھ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ بوتل سے شروع کر لیتا ہوں کہ وقت ایسا ہے نا کہ بوتل کی مثال دینی پڑ گئی، لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں نہیں مثال نہیں، تجھے کچھ اور بھی چاہو نہیں، میری مثال میں دم والی بوتل لائل پر سے ہوں، دم والی بوتل پہ یقین کرتا ہوں، راحت فتح علی خان والی بات۔ دو باتوں کا جواب دوں، ایک تو ڈی این اے کی، یہ بڑی لیٹسٹ سوچ ہے ہماری کہ ڈی این اے خراب ہے۔ میں ابھی ان کی بات کرتے میں نے سوچا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو خطے کی جو تہذیب ہے، دنیا کی چند ایک پرانی جو تہذیبیں ہیں ان میں سے ایک ہے سیولائزیشن۔ آپ مہر گڑھ کی دیکھ لیں، آپ یہ ہڑپا کی دیکھ لیں، موہنجو-داڑو کی تاریخ کیا ہے، جو بھی ہے، چترال، ایک منٹ ہے، ہر جگہ چترال ہوتی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں احساس کمتری کا ہم شکار ہیں، وہ نکلتی نہیں ہے۔ گورا مارے تو خوش ہوتے ہیں، براؤن مارے تو ناراض ہوتے ہیں، ہر جگہ چترال ہوتی تھی، یورپ میں بھی چترال ہی رہی ہے، خیر وہ بات لمبی ہو جائے گی، تو ڈی این اے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تہذیب سب سے بڑی تھی، انگریز آیا 25% آف ورلڈ جی ڈی پی صرف سب کانٹیننٹ کا تھا، ہاف آف دا ورلڈ ویلتھ واز ان سب کانٹیننٹ، تو یہ ہماری تاریخ اتنی بھی بری نہیں ہے، ٹھیک ہے ہم حالات برے میں سے گزر رہے ہیں۔
اتنی मासूमियत से इन्होंने हथियार को मासूम बना के पेश किया। हथियार अगर मासूम नहीं होता है। मैं खुद लायलपुर का नाना होता तो इनकी लायलपुरी मासूमियत का शिकार हो चुका होता। ये इतना मासूम हथियार नहीं है। ठीक हो हम गया। जीते जागते इंसान हैं, हमें नहीं है, हैं, यही तो रोल हम है। पैसे पे चलते हैं, हम मफादात पे चलते हैं, हम उसके मुताबिक नहीं, अपनी glorify पॉलिसीज करी बनाते जाए। हैं, हम ठीक उसके है। मुताबिक लोगों को शऊर देते हैं या नहीं देते, या उन्हें मायूसी देते हैं। ये दुरुस्त। हमारे अपने उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, और मैं- मीडिया का काम है सच का। ठीक है, हथियार इस तरह नहीं, वो टूल के तौर पे मैंने कहा तो इस्तेमाल फिर वो होता है। टूल भी तो यूज होता रहा ना, मीडिया में आपको और खुद पता है कि क्लाशनकोव में मीडिया फर्क कैसे है। इस्तेमाल। रदी मलिक साहब, मैं आपकी तरफ आना चाह रही हूँ, आप हलकों में भी गए, लाहौर में भी मौजूद रहे। 130 नवाज शरीफ वर्सेस यास्मीन राशिद, अब एक तासुर बन चुका है मुस्लिम लीग नून, और वो 4th टाइम बिलावल भुट्टो ने तो नारे भी बहुत लगाए। हल्के की हालात देखकर क्या समझते हैं? बहुत ही आसान है। नवाज शरीफ जीत जाएगा, लेकिन अगर यास्मीन राशिद कैंपेन कर रही होती तो फिर सूरत हाल मुख्तलिफ होती। उसकी तंजीम अगर ग्राउंड पे होती तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। वो सूरत हाल नहीं है, इवन नहीं है फील्ड दोनों के लिए। अगर एक तरफ से बैटिंग कर रहा है तो दूसरी तरफ से बॉलर उठा लिया जाए, या अगर जो बैटिंग साइड है उसके सामने आके बाउंसर फेंकते जाएं और उसको अंपायर नो बॉल ना दे, पीटीआई अपना पूरा जोर भी नहीं लगा पा रही। नहीं लगा सकी। जो उस सूरत हाल तो ये है कि उनका जोर लगे कि एग्रेसिवली कैंपेन कर रहा है, उसके खिलाफ 2-4 पर्चे हो जाते हैं, या भतीजा बन जाए, या फैमिली में से कोई बंदा पकड़ा जाता है, तो उनके लिए सूरत हाल बराबर नहीं है, यकसा नहीं है। लाहौर बहुत बड़ा शहर है और सारे हल्के बड़े अहम हैं। खुद नवाज शरीफ साहब का पूरा खानदान भी लाहौर में ही किसी ना किसी हल्के में, हर देखिए, जगह इतनी सहूलत है उनको। लाहौर में पहली दफ़ा एंटी PMLN इतना सेंटीमेंट मैंने देखा है पिछले 3-4 इंतखाबात में, पहले कभी नहीं देखा। मेरा ख्याल था कि 13 में और 18 में नून लीग बहुत तगड़ी थी, इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा जोर लगा के तो PTI की हुकूमत बनवाई थी 18 में। उस वक्त नून लीग बड़े आसानी से पंजाब हुकूमत बना लेती, मरकज़ में भी उनकी सीटें ज़्यादा होती, बिल्कुल ऐसा। बहुत जोर लगाना पड़ा पंजाब में उनको, तो बहुत जनूबी आसान था सूबा independent। पंजाब महाज बनाया और जी। पता नहीं क्या कुछ किया। फैसलाबाद के बाद जगह ऐसे थे कि हम 18 के इंतखाबात के अंदर कैमरा लेके जाते थे, 150-200 लोगों का एक मोहल्ले में जाके कमेंट रिकॉर्ड करते थे। बड़ा अच्छा रियलिस्टिक सर्वे बनता था। एक पूरे आपको 7-8 अगर लोग 700-800 लोगों का सैंपल साइज़ मिल रहा हो तो नून लीग क्लियरली लीड कर रही थी, और एंड रिजल्ट उससे मुख्तलिफ थे। मैं अब उन कैंडिडेट्स का नाम नहीं लूँगा जहाँ मैं कन्विंस था कि नून लीग का बंदा जीता हुआ, एंड पे वो बंदे हार गए थे। अच्छा। इस दफ़ा मैं कह रहा हूँ, पहले से कह रहा हूँ कि वहाँ पर अगर मैं वोटर्स की परसेंटेज के ऊपर जाऊँ तो बड़ा क्लियर एज हासिल है PTI को, लेकिन वहाँ से जीतेगा नून लीग का बंदा, PTI नहीं जीतेगी, क्योंकि उसकी देयर इज़ नो तंजीम। 8 को वो वोट डलवाना पड़ता है, वोटर को मोबिलाइज करना पड़ता है, जगह बतानी पड़ती है, लेके जाना पड़ता है। जमात कहाँ पर है? ना बल्ला है ना जमात तो है, उन्होंने करना है लीडर ना, जेल जब में सब पड़ा है। था अब जब नहीं है। तलत साहब, देखिए PTI इवन इन द बेस्ट ऑफ टाइम्स कभी वो मुनज़्ज़म जमात नहीं रही। अगर आप 2013 के उनके इंतखाबात देखें तो इमरान खान की तंजीम साजी की जो सलाहियत है, अब हम जूम इन कर रहे हैं, जूम आउट से निकल के जूम इन कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान था। 2018 में जब उनका पीक टाइम आया, जब उनके पास मौका था, तो उन्होंने अपनी तंजीम को आउटसोर्स कर दिया, और उस आउटसोर्सिंग के नतीजे में उनको बहुत क्लियर पाथ मिल गया। GDA भी बन गई, बाप भी बन गई, जीप भी आ गई, साउथ भी उनके साथ सारा मिल गया, हनीफ अब्बासी भी उठाया गया, मिलियन थिंग्स हैपेंड। बाप पार्टी बस क्रिएट कुछ भी करना नहीं पड़ा, खुद से कुछ भी नहीं कुछ भी करना करना चीजें पड़ा। करके दी अच्छा, जाती। उसके बाद फर्दर आउटसोर्सिंग कर दी, गवर्नेंस उन्होंने जल बाजवा के हवाले की आधी, जल फैज़ के हवाले की आधी, तो उन्होंने तंजीम बनाई नहीं। ये जो जमातें जिनके बारे में बार बार तज़किरा करते हैं कि ये वरासत पे चलती हैं, वरासत के साथ साथ उन्होंने निज़ाम भी बनाया हुआ। पीपल्स पार्टी की सियासत से आप इत्तेफाक करें ना करें, आप सिंध के अंदर जाएंगे, आपको उनकी तंजीम अच्छी या बुरी काम करती हुई नज़र आएगी। पंजाब में काम करती नज़र आएगी। नवाज लीग की अपनी एक कैंपेन मौजूद है, जमात इस्लामी की तंजीम मौजूद है, TLP की तंजीम मौजूद है, MQM भी टूटी फूटी तंजीम मौजूद है, अपनी जगहों पे मौजूद है जहाँ। PTI हम सबको पता है, जब इमरान खान के जिन्होंने इंटरव्यूज़ किए हैं, जिन्होंने उसको करीब से देखा है, उसने कभी तंजीम नहीं बनाई। और मेरे ख्याल में सिंबल के डिसीजन को अगर आप मिनहा करके देखें, जो चीज़ उस फैसले के दौरान हमारे सामने आई कि कितने बोधे अंदाज से आपको बुनियादी काम जो है आप नहीं कर पाए। तो अब चूंकि तंजीम का इम्तिहान है, अब क़यादत का इम्तिहान अगर नहीं है ही नहीं तो फिर क्या होगा? There you go। शहजाद साहब, अच्छा, मैं जूम आउट करना चाह रहा हूँ, चलें आप जूम आउट और जूम आउट करने के बाद दो लालपुरियों के बीच में कोई गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। कहते हैं कोई पागल ही होगा जो दो लालपुरियों के बीच में बात कोई करेगा, लेकिन उधर से बात पिक करते हुए दोनों तरफ से, ये मसला क्या है? ये क्यों जूम आउट करने के बाद ये क्या वजह है कि ये ताकत, देखिए ये ताकत का हसूल है ना, हमारी गलती, मेरी नाक़िस अक्ल के अंदर ताकत का हसूल हमने लेने का हासिल करने के लिए हमने ताकत को ही बुनियाद बना लिया है। नहीं, ताकत इस्तेमाल करते हैं ताकत को हासिल करने के लिए। ये तो दलील का खेल है, सियासत तो दलील की बात है।
सियासत तो अक्ल की बात है। बट कारोबार में दलील होती है? नहीं, कारोबार तो नहीं है ना। अभी यहीं पे बात हुई थी। देखें अभी हम बहुत बेहतर उम्मीद देने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को। तो अगर अक्ल की बात है तो मुझे बताइए कि अक्ल की फिर या कमी है किसी जगह पे, या एप्लीकेशन की कमी है, या सोचने के अंदाज की कमी है। क्योंकि जो लोग आपके हाथ से ताकत छीनते हुए या छीनते हुए लगते हैं, नजर आते हैं, उनकी भी अकल भाई इसी स्टॉक से निकले हैं ना। तो किस स्टॉक से क्यों निकल, क्यों ये वजह है कि मेरे पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के पास वो कंट्रोल नहीं है जो कि उस तरफ को शिफ्ट होता हुआ हर वक्त नजर आता है। क्या वजह? ये क्या बंदूकों से और तोपों से और धानों से उन चीजों से फायर करके देते हैं? नहीं, अकल डायलेक्टिक्स की खेल है, और डायलेक्टिक के लिए अपने दिमागों को इस्तेमाल करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। अगर शॉर्टकट मार के आएंगे तो फिर लोग उसके ऊपर कुछ ना कुछ बातें होती रहेंगी हमेशा। तो ये नहीं हो सकता कि वापस फिर चले जाओ शॉर्टकट लेने के बाद किसी और तरफ बोलो असल में हमें बनाने वाले कोई और है। ठीक हो गया। मुनीब साहब, ताकत और दलील के बीच जो हुआ, आप क्या देख रहे हैं 8 फरवरी के बाद? कोई अब दलील का कोई है राज या ताकत का ही राज है? नहीं, मेरे ख्याल में ये बहस तो बहुत पहले ख़त्म हो चुकी है। राज तो हमेशा ताकत का ही है, दलील तो आप इस स्टूडियो तक महदूद उसे कर सकते हैं, लेकिन जो एग्जिबिट करता है बाहर जाकर जो चीज़ वो जो अपने आप को मनवाती है वो तो ताकत है। वो तो सियासतदान की तो मजबूरी है फिर सर्वाइव करने के लिए ताकत ही चाहिए। उसमें एक इशू है ना, उसमें एक इशू है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कहूँगा कि हमने ये बहस कब छेड़ी, जब हमने इसके ऊपर बात करना शुरू की कि यहाँ यही मवाजना होता है ना लास्ट इलेक्शन से, या जो 2018 के हालात और 24 के हालात, एसेंशियली हम सारे बाय एंड लार्ज वो बीच में उसी के गुस्से में होते हैं। इशू ये है कि हमने भी ये कहा कि या सोच थी एक कि 2018 के अंदर जो हुआ ज़रूरी नहीं कि 2024 में उसकी रिपीट टेलीकास्ट हो, या कुछ चीज़ें अगर गलत होगी तो ज़रूरी नहीं कि वो हो। लेकिन जो 2018 का फैक्ट्री था, उसने कहा यार आप अपनी जो ये सहाफ़त और अपनी जो तमाम तज्ज़िया निगारी ने इसे साइड पर रखें। We were the ones who suffered. So we went through it. So अगर हमें किसी ने चॉपिंग बोर्ड पे रखा और हमारे टुकड़े किए सियासी तौर पर, तो फिर ये किसी और के साथ भी होने दीजिए जो उस 2018 के ऑपरेशन का या उस तजर्बे का बेनिफिशरी था। अब जरा उसको चॉपिंग बोर्ड पर आने दीजिए। आप अपनी ये जो फराख दिली है और ये जो मैग्नेनिमिटी आप दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि जी बस बहुत हो गया, अब चलें दुरुस्त समत का तयन हो जाना चाहिए, इसको छोड़ दें। फिर आप छोड़ देते हैं ना, फिर आप वाकई कहते हैं कि या कोई भी वो किसी फिल्म का हीरो तो नहीं बन सकता ना जी कि जहाँ हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होगी, वो तो नहीं हो सकता। आपने ग्राउंड रियलिटी बारी सबकी बारी आएगी। कितनी इंप्रूवमेंट होगी भाई। वो पहले बैठे होते थे सदर पाकिस्तान 11 साल तक, उसे छुकड़ के आप पीछे छुप के थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ये से भी गुजर जाएगा। चलो मैं इस सवाल को फिर ऐसे क्या फिर इसके एवोल्यूशन पे हम आ गए कि 11 साल से हाइब्रिड के सिस्टम पर? कौन सा हाइब्रिड सिस्टम और क्या बातें हम कर रहे हैं? आई बिलीव इन द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और मेरा यकीन है कि 8 को जो फैसला करेंगे वो सोच समझ के करेंगे, बग़ैर किसी दबाव के करेंगे। ये जो हम तासर देते हैं ना, कोई दबाव उस रोज़ होगा, कोई दबाव नहीं होगा, कोई डब्बा नहीं उठा सकता। कोई डब्बा उससे पहले तो है, जो हो गया सो हो गया, वो उसमें हम सब शरीक। अब सब कुछ बदल गया। मुझे बात करने दें, मुझे बात करने दें ना। ये कह रहे हो गया, जो होना था वो हो गया, उसमें हम सब शरीक हैं। और ये बिल्कुल अब सारा सही चीखता है कि हमारा रोल जो है ना, इस पर कभी बैठ के डिबेट करेंगे। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, टर्न ओवर मैटर करें। अगर टर्न ओवर कम होगा तो उसका किसको नुकसान होगा, अगर टर्न ओवर ज़्यादा होगा किसको। आई फील जो पार्टी जिसको रांदा दरगाह कहा जा रहा है और सब कुछ उसे छीन लिया गया, स्टिल टुडे they are in a position to get 35 to 40 National Assembly seats. पिछली बार 100 से ऊपर थी, कहाँ 35-40 पे ले रहे हैं? नहीं वो 100 से गलत। वो पार्टी तो कैसे एक सेकंड ठहरिए, कोई आर्टिस्ट नहीं बैठेगा ना कुछ होगा। पिछली बार और 100 कौन सी उन्होंने ली थी? कौन सी 100 ली थी ना? मुझे जरा बताइए। ऐसा न करें हम लोग यार। कौन सी 100 सीट उन्होंने नेशनल असेंबली से ली थी? प्लीज टेल मी ना, यू आर ऑल सीनियर पीपल। बड़ी जमात के तौर तो आई ना, सामने आई। वो कैसे आई? कैसे आई? 2000 आप ये कह रहे हैं 18 जैसा कुछ नहीं हो रहा, बदल गया है। अच्छा हौसला करें, आप हौसला करें। 2018 की रात को टाइम खत्म, ठीक है, 2018 की रात को जब इलेक्शन खत्म हुआ था, पंजाब में वो कहाँ खड़े थे और वफाक में वो कहाँ खड़े थे? पंजाब में बदल गया है सब।
आप मुझे तो समझ नहीं आ रही फिर आप डिबेट क्या कर रहे हैं? ठीक नहीं हो गया ना। मतलब देखिए, आप बहुत पंजाब आप वो मुझे हार समझ गए। नहीं डिबेट क्या कर रहे हैं आप? पंजाब अगर हार आप गए, 2018 सिंध का हार रिजल्ट गए। मानने को भी तैयार नहीं है, 2018 की रात का रिजल्ट मानने को भी तैयार मैं नहीं तो है, मान तो आप रही पता नहीं हूँ। कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, आई हैव नो मैं तो मान रही हूँ सर, तो कहाँ नहीं मान 16 रहे? सीटें थी तहरीक इंसाफ की कहाँ पे? 2018 में, कहाँ पे? 126 कहाँ पे? जो है वो PMLN की थी। फिर उसके बाद वो जो नतीजा चेंज हुआ, फिर आप हमारे छोड़- सामने नतीजा आ ये गया। मेरी- तो जो आप बात कर रहे हैं मोहतरमा ना, मेरी जी, बात जी। सुनो, 2018 हाँ रात को जी। जब काउंटिंग खत्म हो गई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की पंजाब में कितनी सीटें थी, वफाक में कितनी सीटें थी, जाइए पढ़ लीजिए और फिर इस डिबेट को शुरू कीजिए। लेकिन इसके लिए मैं बताऊं, देखें 2008 और 2018, ठीक है, इन दोनों इलेक्शंस में जब के PMLN गवर्नमेंट में नहीं थी आई थी, दोनों तरफ अपोजिशन बैठी थी, उस वक्त भी 85 के करीब थी यस और उसके बाद 82 थी। ठीक है। तो इसलिए ये है बगैर किसी पुश और बगैर पुल किसी के, पुश- जी, ये किरण, है अपना जेन्युइन point ऑर्गेनिक किरण, सपोर्ट। इजाज़त किरण, दीजिए। जी, आप बताओ। एक पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन है, मैं अभी दरअसल साहब से भी शेयर कर रहा था। देखें, हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को ये मिल जाएंगी सीटें। तहरीक इंसाफ एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उस वक्त तक फंक्शनल सियासी जमात नहीं बनती जब तक उनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होता, हाँ, वो भी नहीं जो होता, अभी फिर- नहीं हो रहा। अभी नहीं हो रहा है। अच्छा, Okay. मैं कौन नहीं करवा रहा? तलत साहब मुनीब, का एक मैं जुमला सेकंड, बड़ा एक मार सेकंड, करती हूँ। मुनीब कौन नहीं करवा रहा? पार्टी और खुद किसने नहीं ये करवा रही। साजिश की किरण, इमरान खान के खिलाफ? किरण का तो पॉइंट नहीं, चले जब अभी ऐलान शेड्यूल कर दिया, सर। अभी शेड्यूल दिया ना उन्होंने, सीटें तो वो उसके जीत क्यों भी नहीं जाए, शेड्यूल दे उनके दिया? हिमायत के याफ्ता लोग। हसन निसार साहब, हसन निसार साहब से कमेंट एक लेना है, हसन आप निसार साहब देख क्लोजिंग लें पे सी जा बात रहे हैं, कोई निज़ाम कमेंट दे ठीक कैसे दीजिए। करना है, वो हसन निसार साहब टीका सरो, सरो, सरो। तारीखी जुमला। हसन साहब, आपका हसन तारीखी साहब, जुमला। हसन साहब, closing comment। ठीक देखें, एक पहली बात तो ये है कि तेजाब का गुस्ल दें। दूसरी बात ये है कितना बड़ा कि वो? अब्सार आलम सर ये को establish ये करें पहले। समझाएं। मुझे सिर्फ एक बात अब्सार आप बताओ, DNA किसका मुखफ़फ़ है? भाई चलो अच्छा, साइंस की क्लास नहीं हो नहीं, रही, बस अब खुदा वास्ते ही। एक मिनट। चलें जी, ये गर्मा गर्म यहाँ पर बहस और गुफ्तगू नहीं, जारी नहीं, है। बात सुनो, एक एक मिनट, इलेक्शन एक मिनट, एक बेटा, सेकंड एक जाने मिनट, दें। hold down। 129 सीट एक मिनट, सर, बात मुझे सुनो, कह दिया पड़ता एक है। बात। आप लोगों से हम इजाजत सवाए- चाहते हैं। आप समा के साथ जुड़िए रहिए इन तबसरों, तज्जियों और ताज़ा तरीन खबरों के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।